अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाम है साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन आज व्हाइट हाउसस मज वोनमुत तिम दुनिया मज अमन कायम कर यचान तो यदवै पत कुन तिमो भारत पाकिस्तान दरमियान सपदन वोल जंग मुदाखलत कर खत्म कोर तत तिमो ईरानस मज अमन कायम करने बापत कार्रवाई अमल मज अनम Great it is. There's no military like it on earth, not even close. And we're doing very well in Iran. You see the result, and it's been amazing. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. When you look at October 7th and beyond October 7th, look at all the killing that they've done over the years, for 47 years. And this had to be done. They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. And they said, well, how are you doing on a scale of 0 to 10? How are you doing with the attack? And I said, about a 15, I would say, with 10 being the best. But it's something that had to be done, and we're doing it well. And I want to thank everybody involved. I'll be going right after this. I'll be leaving for Dover, very sad situation, to greet the families of the heroes coming home from Iran, coming home in a different manner than they thought they'd be coming home. But they're great heroes in our country, and we're going to keep it that way. There's always, when it comes to war, there's always that. But we're going to keep it to a minimum, I think, Pete, and going to be something, a service that we're really providing, not for the Middle East, but for the world. These were sick people, very sick people. So I have an ability to get those things done, to bring people together, and I did great with so many. India, Pakistan, that was going to be a disaster. That was raging for number of days. I did that through trade. I used tariffs and trade, and it was amazing. But we did amazing. One was 32 years, one was 34, and one was 37 years, and we got it done very quickly. And we'll get this one done too. But the hatred is hatred's an amazing thing. People do bad things, and people don't get things done when the hatred is too great. That's a lot of it. Just as we formed a coalition to eradicate ISIS in the Middle East, we must now do the same thing to eradicate. अमरीका तरफ ये हिंदुस्तान रूसस नश 3 दोहन तेल हेनस इजाजत दिन आव तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमे हवाले कत करान वोनमुत हिंदुस्तान खुद मुख्तार मुल्क ताहम मालूम जे मरकजी सरकार तरफ क्या अमे हवाले छप करने आमज. We are not dependent. Exactly. Tragedy is, I don't know why they are making us dependent. Right, sir. It is a question of independence of this country. Right, sir. This country has to decide what is good for it. Nobody else should decide our future. This is tragedy. We have noticed before also, when Manmohan Singh, America wanted it to vote for it. Right, sir. And they said, if you don't, your nuclear deal will be in trouble. You know what Manmohan Singh said? It is the decision of India. India will make its own decision. What is good for India, will do that. कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज महकमे बिजली तरफ लाइनमैन दिवस प्रोग्राम साइंस करने आमद यथ मज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला महकमे बिजली हिंदो जिम्मेदारों तो लाइनमैन शिरकत कर अत मौके पे कईयान मुलाजमन हज हौसला अफजाई कर आय तत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अत मौके पे महकमे बिजली हिंदन मुलाजमन हज जिक्र करान वोनमुत जी मुलाजिम अवामी खदमत करनस मज पन दह रात करान तो सूरत हाल युस जम्मू कशीर मज पैदा सपदन तथ सूरत हालस दौरान मुलाजिम पन फरज चुक सान अंजाम दिवान.
कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पावर डिपार्टमेंट संभाले हुए मुझे अब 7.5 साल से ज्यादा हो गए। पिछली हुकूमत में 6 साल और इस हुकूमत में अब लगभग 1.5 साल। और पहली मर्तबा इस तरह का फंक्शन लाइनमैन के लिए रखा। मैं अपने तरफ से जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के हमारे एमडी और इनके बाकी साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्वनी जी से उठने से पहले हमारे दरमियान सोनू जी जो लाइनमैन हैं, उन्होंने स्टेज का और इस मौके का फायदा लिया और कुछ बातें सामने रखी और बिल्कुल सही कहा कि ये लाइनमैन की मेहनत का नतीजा है कि बच्चे पढ़ पाते हैं, किसानों को खेतों में पानी मिलता है, दफ्तरों में काम हो पाता है। और मैं अपनी जगह सोच रहा था कि ऐसा कौन सा महकमा या डिपार्टमेंट दूसरा है जिसका ताल्लुक हर किसी से होगा। और मुझे एक भी महकमा मां सिवाय इसके नजर नहीं आया। अब आप देखें, हर कोई एसआरटीसी की बस में नहीं चढ़ता, हर किसी के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, हर किसी को सोशल वेलफेयर की स्कीमों का फायदा नहीं लेना होता है, हर कोई राशन कार्ड से राशन नहीं उठाता, लेकिन हर घर में बिजली की तार जो है या जुड़ी हुई है या चंद दिनों में हम पहुंचाने का काम कर लेंगे। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ और मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन आज मटन इलाक़ुक दौर कोर्मुत या दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद अत मौके पे तमो तमीरती कामें जायजे यो तत लूको तरफ जिला तरक्याती कमिश्नर दरपेश मुश्किलन हवाले ते जान दिन आमज यल जन तमो दौरस दौरान सनिस साथी फिदा हुसैन सहित खुसूसी कदबात कर। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन जब से उन्होंने अहदा संभाला है जिला का और कहीं ना कहीं पे जिला का तफसीली दौरा कर रहे हैं और उनके साथ पूरी टीम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी इनके साथ है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, क्योंकि अहदा संभालने के बाद जहाँ अवामी वफूद आपसे मिल रहे वही आप श्राइन्स पे भी जा रहे, वही आज आप मटन पहुँचे हैं जहाँ पर जो एक तवारीख है वहाँ पर आप पहुँचे, हिंदू मुस्लिम सिख जो इतिहाद है यहाँ का वहाँ पर भी आप पहुँचे। कुल मिलाकर किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जैसे कि आपने खुद ही बोला कि अभी हमें एक हफ़्ता ही हो गया था और बहुत सारे डेलीगेशन से मिले हम लोग, बहुत सारे लोगों से मिले और आज हमने शुरू किया है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस साइट्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रहा है अंडर जो हमारा यूटी लेवल की स्कीम है रिवाइवल ऑफ हेरिटेज साइट्स का, इसमें भी यहाँ पर मार्तन टेम्पल आए हैं। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है कामों का, जो हमारा इसमें हेरिटेज कंजर्व करना है और जो इतना पवित्र मंदिर है यहाँ पर, तो इस पे हम लोग यहाँ पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक एपिसोड हुआ था जिसमें ये जो विमल कुंड में उसमें जो मछलियाँ हैं उनको मोर्टेलिटी हुई थी, तो उसका भी एक बार जायज़ा लेने आए थे। तो उसमें बहुत सारा उसके बाद काम हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का भी काम हुआ था और जो कम्युनिटी यहाँ पर है इस वक्त मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त रिवाइवल हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। और इसमें जो रिवाइवल एंड रिविटलाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स जो हमारे अनंतनाग में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फेज़ वन में कंप्लीट किया गया है।
फ़ेज़ 2 में कुछ साइट्स है जिसमें ये भी है मार्तन टेम्पल, जिसमें अभी आप देखेंगे अभी कुछ काम जो है 30% का काम हो चुका है। और मैंने यहाँ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ को डायरेक्ट किया हुआ है कि इधर हम लोग उसको तेज़ी से काम करें, क्योंकि फुटफॉल अब ज़्यादा बढ़ेगा। अमरनाथ जी यात्रा हो रही है अब, तो इसमें भी अब फुटफॉल यहाँ बढ़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी ये काम इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। क्योंकि आवाम के साथ हमेशा आपका जो लगाव है वो रहता है, क्योंकि कुलगाम में हमने देखा, क्योंकि पड़ोसी ज़िला रहा हमारा श्रीनगर, वहाँ से भी लोग कह रहे हैं, और या बडगाम, और बडगाम के बाद अब अनंतनाग, क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़िला है ये, और ज़िला के लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा आपसे वाबस्ता है, क्योंकि लोग कहते हैं इन्हीं दिनों में कि जब भी हम जाते हैं तो हंसता हुआ चेहरा वहाँ पर मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी काम हो गए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर, और साथ ही साथ जो आपका पहला ही डायरेक्शन है कि जो आवाम है उनको मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, तो उस पर आवाम के लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पब्लिक सर्विस का जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमें भी अच्छा लगता है, और इसमें जितना भी हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, हमारी टीम के साथ हम लोग दिन भर यही काम करते रहते हैं, और आए भी हम पब्लिक सर्विस के लिए है। तो लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें खरा उतरे, और हमारे साथ पूरी हमारी जो टीम है वो प्रो पीपल सिटीजन ओरिएंटेड काम करे, और न कि सिर्फ हमारे क्लोज जो हमारी टीम है डीसी ऑफिस की, बल्कि सारा डिस्ट्रिक्ट जो है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, सारे अच्छे से काम करे लोगों के लिए। और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, हम कोशिश करेंगे तो वो हम उसको फुलफिल कर पाए, और ताकि लोगों को ये सर्विसेज पहुँचे, ये स्कीम्स का लाभ पहुँचे, ठीक है, ताकि लोगों को भी फ़ायदा आए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका, क्योंकि नौजवान जो है वो आगे आए और इनका फ़ायदा उठाए, तो उसके लिए उन नौजवानों के लिए सर क्या मैसेज? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देर आर सो मेनी स्कीम्स जहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दैट दो एस्पेक्ट पे, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। आप देखिए कितना ब्रॉड नेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रहा है ज़िले में, चाहे हर कोई ज़िला हो, अनंतनाग में भी हो रहा है। इनफैक्ट उस लेवल तक पहुंच गए हम कि जहां पर हमारे जो हेरिटेज साइट्स है, और जो जैसे आप देखिए मार्तन टेम्पल है, अश्मकाम है, यहाँ गुरुद्वारे हैं, उनको किस तरीके से उनका पुराना हेरिटेज टच है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, और सीएसएस स्कीम्स पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर आप यूथ की बात करें तो हम लोगों का जो डेमोग्राफिक डिवाइड है वो यूथ की तरफ ज़्यादा है। 65% यूथ हमारा इस टाइम है जिनको हमने हार्नेस करना है फॉर द पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए। उस चीज़ के लिए अगर आप देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें मिशन युवा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए हैं, और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा आप बच्चों से कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की जो जॉब्स है वो करते रहे आप, पीएससी का हो, एसएसआरबी को। साथ ही साथ अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में जाना है, मिशन युवा है, अगर आप एग्रीकल्चर के कुछ यूनिट्स आपको एस्टैब्लिश करने हैं, एचईडीपी में बहुत अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, या बहुत सारे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं जो कि डीआईसी, केवीआईबी, केवीआईसी से हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में फ़ायदा ये आता है कि दैट एक तो जॉब अपना यूनिट क्रिएट करते हैं, और वो जॉब क्रिएट करते हैं, फिर और लोगों को जॉब देते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा यूटी में और अनंतनाग में भी अच्छा खासा काम हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। हम इसको आगे ले जाएंगे। आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और सीएसएस के बाकी स्कीम्स से लाभ ले हर किसी को। अगर आप देखेंगे मिशन युवा में जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें एज क्राइटेरिया भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। पहले जो फॉर एग्जांपल अगर हम पीएमईजीपी की बात करें तो 18 से 35 है, किसी में 18 से 38 है, इसमें एज क्राइटेरिया भी नहीं है। इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन क्या दे सकती है यूटी, और बहुत अच्छी सब्सिडी भी है। अगर आप देखेंगे अनंतनाग में बहुत अच्छे यूनिट्स हुए हैं, यूथ ने आगे काम किया है, चाहे रिटेल में हो, चाहे होलसेल में हो, चाहे हमारी बच्चियाँ हैं बहुत आगे आ रही है उसमें। एचएडीपी में बहुत अच्छे यूनिट्स किए हैं, बहुत अच्छा हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो गए, यूनिट्स हो गए जो खड़ा किए इन लोगों ने। मुझे लगता है वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यूटी में बहुत अच्छा चेंज हुआ है। जो सीएसएस स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्रिटिकल था, और मुझे लगता है उस पर हमारा फोकस रहेगा। और ये थे जिला के तरक्याती कमिश्नर जो आज मटन पहुंचे। कई सारे श्राइन्स का इन्होंने दौरा किया, और यहाँ पे हम तवारीखी मटन मंदिर की बात करेंगे। यहाँ आके जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ मुलाकात की, आवाम के साथ इनका जो राबिता है वो जारी है, और इन्होंने कहा कि अनंतनाग के नौजवान जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का फ़ायदा उठाए। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, मटन।
जनूबी कश्मीर हंदिस अछबल कस्बस मज रोजन वाले लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमत यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरफ कस्बस मज स्ट्रीट लाइट नस्ब कर आम तो कया लाइट नाकार सपदन पत् मुतलिक जिम्मेदारन अमे हवाले कयाई फिर जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मोसाम रहमत रेत कि कर डी सी सबस ओत्र रिक्वेस्ट अगर लाइट तो बूझ पुरसान कि तम पे कम से कम 10-15 दह इन तो बूझ पुरसान इन लाइटन कह नेशनल हाईवे अत लाइट दी अ लाइट चलान कि अत करो मेहरबानी कर यह वादी कश्मीर मज पत्मो दो रेतों पे दर्जा हरारत मज गैर मामूली इजाफा सपदन सव कुलन पे फल बरजोश नीरत इन बाग वाल मज तशवीश पौधे सपदमुत तत शुपियानस मज बाग वालों तरफ कत करान वन आमुत फरवरी हंस रेतस मज ताप रोजन सो गोड़े कुलन पे फल द्राम यम फसलस मज कमी सपदन तिमन खदशे सपदमुत। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी मार्च का महीना ही शुरू हुआ है तो गर्मी इतनी पड़ रही है, फरवरी में ही गर्मी इतनी सख्ती की शिद्दत पा रही है कि हमारे जो सेबों के बागात है जो देखिए शाह साहब, सबसे पहले हम गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो वक्तन फ़वक्तन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। तो ये ड्राई स्पेल जो आपको बखूबी से पता है कि जनवरी लास्ट वीक में जो बर्फ़बारी हुई है कश्मीर वादी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी हुई है, तो उस बर्फ़बारी से काफ़ी उतना हमें फ़ायदा नहीं मिला है। गुगलडारा टंगमरगिंदो लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदि कया वरी ब्रो गुगलडारा पांडोलरी द्रंग सड़क तमीर करना आई ताहम अमचि शहर पर हवाल कह कदम तुलन आमुत यम किन सड़क खस्त सपदन सयाहन इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत ज सड़कें शहर पर हवाल गसन संजीदा कदम तुलन यीन। देखिए, जो द्रंग जो पांडोलड़ी है यहाँ पे ओल्ड मोनूमेंट है, वहाँ से लेके जब हम देखते हैं तो गुगलडारा बदरकूट होके जाता है। गुगलडारा ये तो मिलता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, जो खाग एरिया है या तो उस्मदान या दूध पथरी वगैरह उससे भी कनेक्ट होता है। लेकिन जो मेन है यहाँ से जो हमारा इलाका है वो गुगलडारा है, वहाँ तक बदरकूट होके जाता है। तो वहाँ तक इतना रोड ख़राब है, पैदल चलने की भी मतलब कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर कोई पैदल चलेगा तो वो भी मुश्किल से पहुँचेगा। PMGY जो है उन्होंने बनाया था ये, उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा इस पे देखा नहीं, फिर से मतलब इस पे काम करने की ज़रूरत थी, या कहीं पे ड्रेनिंग वगैरह जो इसमें ठीक करनी थी, या उसके अलावा जो थोड़ा मैगडमराइज भी करना था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हमारी गुजारिश है आपके जो चैनल है उसकी वसादत से, हम फिर एक बार उनसे जो है गुजारिश करते हैं ताकि इस पे आप देखिए, क्यों ये एक मतलब ऐसा तो नाजरीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।